जिला आंकड़ा अधिकारी वित्तीय श्री डोडिया साहेब, माजी नायब जिला विकास अधिकारी श्री एस.ए. पंचाल साहब, मनोनीत पीडीओ हिस्सा श्री जे.के. ओडिया साहब, आंकड़ा मनोनीत हिस्सा और श्री अशोक भाई जानी साहब, CRC कोऑर्डिनेटर रामपुरा और ग्राम के लोग, ग्रामजन, सरपंच और जो ग्रामजन आए हैं उनकी मैं इस ग्राम सभा में हार्दिक और सादर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रार्थना। तो सबसे पहले सारी दुनिया बिछाएंगे, दिल अपना बिछाएंगे। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तूने जीने का मतलब सिखाया, जीने लगे फिर से हम। स्वागतम स्वागतम। खूब सरस। અમે અમારા ગુજરાતની એક આગવી ઓળખ છે કે આવેલા મહેમાનોનું સ્વાગત ખૂબ હર્ષભેર કરીએ છીએ। શાળાની બાળાએ ખૂબ સારું સ્વાગત કર્યું। હવે આપણે જે કાર્યક્રમ માટે ભેગા થયા છીએ એવા કાર્યક્રમ ગ્રામ સભાની શરૂઆત કરીશું। के सरपंच अशोक भाई और तलाटी मित्र हमारे वीवी पटेल, ये हमारा तालुका है, इसका ये पोर्शन है, एक विलेज है। कल और परसों के 2 दिन पहले हमें सूचना मिली कि यहाँ ग्राम सभा बुलाने की है। मुझे आशा थी कि 150 से 250 लोग आएंगे। सरपंच श्री ने और तलाटी मित्र ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे तालुका पंचायत की ओर से और गांव की ओर से। मैं सभी का यहाँ अभिवादन करके स्वागत करता हूँ। 2 જિલ્લાઓ એવા છે જે ભારત સરકારે આમાં સિલેક્ટ કરેલા છે, એમાંથી એક છે દાહોદ અને બીજો છે બનાસકાંઠા। દાહોદ પણ ટ્રાઇબલ વિસ્તાર છે, બનાસકાંઠા પણ ટ્રાઇબલ વિસ્તાર છે જ। હવે આ જે તાલુકા સિલેક્ટ કર્યા છે એની પાછળનો આ જે ટીમ છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સરકારને એ જાણવું છે, ભારત સરકારને જાણવા માગે છે કે ગ્રામ્ય કક્ષાએ તમને કેવી કેવી સેવાઓ મળે, તકલીફ પડે છે। આજે આ ટીમ જે આપણી વચ્ચે આવી છે એ ટીમ ગ્રામ સભામાં તમે કેવા નિર્ણયો લો છો એની અંદર તમારી કેટલીક મુશ્કેલીઓ હશે એની પણ રજૂઆતો થતી હશે। વર્ષની અંદર આપણે જે કામો કરવાના છીએ, જે વ્યક્તિગત લાભાર્થીઓ છે એ લાભાર્થીઓ પણ આપણે ગ્રામ સભામાં નક્કી કરે ને એ માણસોને આપણે લાભ આપીએ કરતા હોઈએ છીએ। તો આજે આ જે ટીમ આપણી વચ્ચે આવી છે એ ટીમ પોતે પણ એ જાણવા માગે છે કે તમે જે કંઈ ગામની અંદર નિર્ણય લો છો, કારણ કે ગામ એ સર્વોપરી છે, એ જે કંઈ નક્કી કરે છે એ છેક દિલ્હી સુધી જાય છે, જિલ્લા સુધી નહીં, તાલુકા સુધી નહીં, છેક દિલ્હી સુધી તમારો અવાજ જાય છે ને તમે કેવા નિર્ણય લો છો। એટલે આ જે ગ્રામ સભાની જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ કઈ રીતની છે, એમાં કેવા કેવા નિર્ણયો થાય છે, તલાટી મંત્રી શું કામ કરે છે, ગામ સભાની અંદર આરોગ્યને લગતી તમારે કઈ રીતની સગવડો તમે મેળવો છો, શું તકલીફ પડે છે, એ બધા જ પ્રશ્નો આજે વિગતવાર તમે ચર્ચા કરો। તો આપણી વચ્ચે જે ટીમ આવી છે એ હકારાત્મક આપણને જે કંઈ તકલીફો પડે છે એ તકલીફોનું સોલ્યુશન ત્યાંથી આવશે। કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે બોલીએ નહીં ત્યાં સુધી
સરકારને ખબર નથી કે તમને શું મુશ્કેલી છે, એટલે કઈ રીતની સેવાઓ જોઈએ આ બધી જ ચર્ચાઓ આજે કરવાની છે। હવે તમારે ગ્રામસભાની અંદર આપણે આજે જે કંઈ અગાઉ જે ગ્રામસભાઓ, કારણ કે વર્ષની અંદર આપણે 3 મહિને એક ગ્રામસભા બોલાવતા હોઈએ છીએ, એમાં ગ્રામના જે પ્રશ્નો હોય છે એ પ્રશ્નો રજૂ થતા હોય છે। પંચાયતમાં જે કંઈ ખર્ચા થયા હોય છે એ ખર્ચ પણ આપણે મંજૂર કરતા હોઈએ છીએ। એટલે આ બધી જ વિગતો આજે એજન્ડા મુજબની કાર્યવાહી થાય એ માટે સરપંચશ્રીને પણ હું વિનંતી કરું કે પદ્ધતિસરની ગ્રામસભા થાય એ રીતનું આપ શું આયોજન કર્યું છે એ માટે આપને પણ હું અભિનંદન આપું છું ને કાર્યવાહી ચાલુ કરે એવી હું વિનંતી કરું છું। 2 મહિને બાટલા ભરી બી ના આવે। આપણી જે આપણે આગળ વાત કરી હતી એ તમામ બાબતે હવે ખૂટતી જરૂરિયાતો એ કેને કહેવાય? ધારો કે કેટલીક યોજનાઓમાં આપણે પોતાને પણ થોડો સાથ આપવો પડે। અહીંયા પાણીની સગવડ, ધારો કે પાણીની સગવડ માટે આપણો બોર ફેલ ગયો, એના માટે અમે એક સમિતિ જે આપણી સ્વજલ ધારા છે એ સ્વજલ ધારામાં એવો નિયમ છે કે 10% આપણે આપીએ એટલે 90% સરકાર આપે। એ 10% શા માટે? કે 10% એ મોટી વાત નથી। આપણે 5000 આપણે 10,000 આપીએ એટલે સરકાર 90,000 આપે, 10,000 આપીએ એટલે સરકાર 90,000 આપે। આપણને 1 લાખનું ગામમાં કોમ થાય, એ 10,000 કેમ? સરકાર 90,000 આપે તો એ 10,000 પણ આપી શકે છે, પણ એ નથી આપતી। એનું કારણ શું? કે આપણે એ વસ્તુ આપણી છે, આપણે 1 રૂપિયો આપ્યો છે તો આપણને એ વસ્તુ પ્રત્યે મોહ થશે। હેડતો છોકરો ચકલી તોડી નાખશે, પણ એને જો રૂપિયો આલેલો છે તે ચકલી નહીં તોડે। એટલા માટે આ યોજનાનું કારણ એ છે, એ યોજનામાં આપણે આ પાણી પુરવઠાવાળો બોરનું કામ લીધું છે। લોકો પાછળ અમે ફાળો લેવા ગયા છીએ, એમને ફાળો આપ્યો પણ છે। ટૂંક સમયમાં એ શરૂ પણ થઈ જશે। થોડો ફાળો ખૂટે છે, અમે વિનંતી કરીએ છીએ, સારા માણસો છે જે થોડા સંપન્ન છે એમનો અમે સંપર્ક કર્યો છે, અને એમાંથી આપણું જે પાણીનું છે એ ટૂંક સમયમાં હવે એના સૂચનો પણ અમે લઈએ છીએ, બરાબર? એ રીતે પંચાયતના ગ્રામ પંચાયતમાં આપણે જે યોજનાઓ છે એ વખતો વખત આપણે સમજાવતા હોઈએ છીએ યોજનાઓ વિશે। એ ઘણી બધી યોજનાઓ છે, એનો દરેકને લાભ લેવા માટે હવે લાભાર્થીની વાત સાહેબે કરી। આ BPL લાભાર્થી એટલે એમાં આપણે કેટેગરી નક્કી કરેલી છે કે સૌથી નીચેના લેવલનો વ્યક્તિ, એની કેટેગરીથી મોડી 0 થી 16, 17 થી 20 આ બધી એની સર્વે પણ કરીએ છીએ। એમને એમની પાયાની જરૂરિયાતો એમાં કઈ ઉણપ છે, કયું શું ખૂટે છે, સરકાર ઘણું બધું આપણને આપવા માગે છે, આપણે એનો ઉપયોગ સારી રીતે કરીએ છીએ। હવે આ ગ્રામ સભાનો અસલ હેતુ આ રહ્યો છે। હવે અહીંથી જે પધારેલ સાહેબો પધારેલ છે ઉપરથી સાહિત્ય છે, એના માટે આપણે શું કરી શકાય એ લોકોનો પણ અભિપ્રાય જોઈએ। ગ્રામ સભાનો અર્થ એટલે એક સલાહકાર સમિતિ ટાઈપ ગણાય। સલાહકાર એટલે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કામ કરતા હોય, પંચાયત કામ કરતી હોય, એમાં તમારા લોકોનું સૂચન એ વધારે અગત્યનું છે। લોકો કે એ પંચાયતને કરવાનું છે, લોકો કે એમાં પંચાયત આગળ થવાનું છે। એટલે લોકો ગ્રામનો ધંધો છે, બીજો ધંધો નથી। અમે જ્યારે શાળાના બાળકો હોય ને સાંજે એમની હાથે પણ કહેવડાવીએ છીએ કે ભાઈ આપના વાલીને એમ કહેજો કે આ તારીખે આટલા વાગે અહીંયા ગ્રામ સભા ભરવામાં આવે છે તો એમને મોકલજો, બરાબર? પછી અમે ધારો કે પંચાયતના અમારા જે પટાવાળા હોય, ચોકિયાત હોય, અમે પણ જો જે મળ્યા હોય, બરાબર? હવે આ આપણે અચાનક આયોજન કરવાનું છે, અને આ ગ્રામ સભા છે ને ઈંડાની થેલી આવતી, ગોમ સેવક તરીકે DAP આવતી, અને તમે એ જ ના કરો। ભાઈ અમારે એ બંધ કરવા ચમચમ શું છે? અમારે તમે કહો ઈદ ના ખૂબ હાલો ના મુશ્કેલ નથી। મારે અહીંયા DAP આવતી, ઈંડાની થેલી મળતી હતી। સરકારી PSCમાં નાનું સેન્ટર, નર્સ બેનનું સેન્ટર કે આવું આપે એ આપણે આ લખીને મૂકીએ, આપણે મોટું માગીએ પણ એ કદાચ એ જ મળે। કારણ શું PSC અમુક પછી એરિયા નથી કે 8 કિલોમીટરની આજુબાજુ એ ગામમાં લાભ લે, બીજા 8 કિલોમીટરની આજુબાજુ એ ગામમાં લાભ લે। એટલા માટે એમાં એ દવાખાનું સબસ્ટેશન, હવે સબસ્ટેશન આપણે અહીંયા નજીકમાં કયો છે? को ये पता है कि पंचायत का क्या काम है? यहाँ पर जो आप लोग आते हैं, आप लोग अपनी बातों को बताते हैं कि गांव में क्या क्या कमी है
और वो कमी को कैसे पूरी करनी चाहिए है, तो उसमें फिर आप लोगों को बताते हैं कि आपने जो पिछले बार बताया था कि हमारे पास ये सब नहीं है, तो उसके बारे में फिर आपको बताते हैं कि ये वाला काम इसकी वजह से नहीं हो पाया, या ये वाला काम के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने अभी ये कदम उठाए हैं। वो आपका अस्पताल हो या स्कूल हो या पानी की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो, उसके लिए अभी सरकार क्या काम कर रही है, तो इसके बारे में आप लोगों को फिर वापस में बताया जाता है दूसरे वाले पंचायत जब बैठती है, ग्राम सभा बैठता है या नहीं। मतलब जो सुचारू रूप से जो काम होना चाहिए पंचायत में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये खुश है या स्कूल का जो नहीं, इन लोगों से पहले पूछ लेते हैं। સરકારશ્રી તરફથી આપણા ગામમાં કોઈ પણ સારું કામ થયું હોય તો મેડમ એવું કહે છે કે કંઈ સારું કામ થયું હોય સરકાર તરફથી તો કો ઊભા થઈને कोई बताएंगे? સભી મહેમાનો ગ્રામજનો ગુજરાતી મત કહીશું કે मालवा आप गुजराती में बोलें, आप प्लीज वी आर टोटली रिलाइंग ऑन यू। આપણે એક સારામાં સારું કોમ આખા ગામની અંદર દેખાતું હોય બરાબર, તો આપણે ગામમાં આવીએ એટલે સીધી નજર આપણી સ્કૂલની અંદર પડે બરાબર, સ્કૂલ ઉપર પડે કે ભાઈ આપણો અહીં હંકળા છે તેની તેલ બાજુ એક શાળા થઈ છે બરાબર। એટલે સારામાં સારું એક કામ એ થયું છે કે જે ગુજરાત સરકારે જે 3 કિલોમીટરની અંદર સ્કૂલની જરૂર છે બરાબર, આપણે ગ્રામ સભાની અંદર વારંવાર રજૂઆત કરતા હોઈએ છીએ, તેમ છતાં આજના તાજા સમાચાર મુજબ બે જે દાતાઓ જે છે એ તૈયાર થયા છે બરાબર, કે ભાઈ આપણે હા જમીન માટે બરાબર, જમીન તમે આપશો, સ્કૂલ આપણે ત્યાં આગળ ચાલુ કરી દઈશું બરાબર। 1 થી 4 ધોરણના બાળકો ત્યાં ભણશે બરાબર, 5મા ધોરણમાં આવશે એ બાળકો એ આગળ મોટા થયેલા હશે બરાબર। ત્રીજી બાબત આપણે ખાસ જરૂરિયાત જે છે બરાબર, હું જ્યારે ડીસાથી જ્યારે અહીં ઓઢવા આવતો હોય ત્યારે પહેલાં હું એ જોઉં છું કે ઘણા બધા બાળકો સાયકલો લઈને જતા હોય છે, અમુક બાળકો ચાલતો જતો હોય છે બરાબર, 8-8, 9-9 વાગ્યા સુધી રોમપુરા સુધી ફરતો હોય છે એ બાળકો, તો આપણે કેમ એક હાઈસ્કૂલની માગણી નથી કરી શકતા? આપણે હાઈસ્કૂલની માગણી કરી શકીએ બરાબર। ઘણી છોકરીઓ એવી છે કે ધોરણ 7મું ભણીને ઘેર બેસી જાય, અગર હાઈસ્કૂલ હોય તો સારું બરાબર। એટલે ગ્રામ સભાની અંદર એક આ મુદ્દો આપણે મૂક્યા જેવો છે, એની ચર્ચા છે બરાબર। બીજી વસ્તુ કે આપણે પાણીનો પોકાર પાડી છે, પાણી પણ જ્યાં સુધી આપણે થોડાક ફાળો નહીં આપીએ બરાબર, ત્યાં સુધી તો આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લગભગ થશે નહીં, પણ થઈ જશે અઠવાડિયાની અંદર કે 10-15 દિવસની અંદર બરાબર બરાબર। અત્યારે MDM જે કનુભાઈ આપણે જે ચલવું છે એમાંથી આપણને પાણીની સગવડ મળી રહેશે બરાબર, એટલે એ સારી બાબત છે। એટલે શિક્ષણમાં આપણે ખૂબ આગળ છીએ, કાળજી માત્ર એટલી રાખવાની છે કે બાળકો કોઈ ઘેર ના રહે બરાબર, અને જે બાળકોની શાળા દૂર પડે છે એ બાજુ જે દાતાઓ તૈયાર થયા છે એમને આપણે ખૂબ સહકાર આપવાનો છે। हमारी जो सरकार है वो सर्व शिक्षा अभियान, मतलब ऐसा नहीं कि जो इधर के बच्चे वही लोगों को स्कूल जाने की जरूरत है, जो आप लोग हैं आप लोगों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के इन्होंने बताया मिड डे मील, मतलब दोपहर का खाना स्कूल में मिलता है, મધ્યાહન ભોજન, मध्यम भोजन जिसको बोलते हैं, तो आप लोग स्कूल जाते हो, आप लोगों को मिलता है? મધ્યાહન ભોજનમાં જમવાનું મળે છે? એ શા માટે બંધ થઈ જશે અથવા તો બાળક ઘેર શા માટે રહેશે? नहीं, आप लोगों को दूर पड़े नहीं, क्या મા બાપ की बोलते हैं। ફાધર મધર की भूल है जो भेजते नहीं है। तो आप लोग एक चीज को तो मानते हैं ना कि जो हाँ बराबर તમારો પ્રશ્ન મેં લીધો છે, એ દૂરવાળો મેં લીધો છે। जो लोग जिसके कि बच्चे आप लोग नहीं पढ़ाई लिखाई किए, जो लोग कि अभी आप लोग बड़े हो गए हैं और आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए, तो आप लोगों को पता नहीं कि सरकार हमारे लिए गांव के लिए कितना क्या स्कीम कर रही है, कितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जे 100 तक और सर्व शिक्षा अभियान मिशन शुरू हुआ, DPP यहाँ शुरू हुआ, उनके बाद आज 521 जो बढ़ती हुई है, लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि वो काम है बच्चों के साथ वाली से काम करना बहुत लग रहा है, बहुत मुश्किल कार्य है। उसमें हमें 100 में से 500 तक अभी आए हैं। अब जो रोग हैं 10% के 5% बच्चे, उनको भी हमें आपके पास पूरा हिसाब किताब है कि हाँ, मेरे कितने पास बच्चे सही, स्कूल में सही। और कितने बच्चे स्कूल में हैं और कितने बच्चे कितने बच्चे नहीं, मेरे पास सब कुछ है। कितने बता दीजिए आप। 5 मेरे पास 30 बच्चे इस साल के बाहर के हैं, अभी अब 16-40 ईयर्स के बच्चे हैं, बाकी सब स्कूल में जो नहीं बनते हैं वो तो सब वही बच्चे उस समय आ जाएगा सर। लेकिन हमारे शिक्षण 6 से 14 साल हाँ के बच्चे 29 बच्चे हैं हमारे लक्ष्य में जो हैं, बाकी भागीदार के होते हैं यहाँ के। नहीं, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये तो यहाँ पर ही नहीं, मुझे वो तो 20 बनता है, बच्चे लाल दिख शर्ट वाला जाएंगे। तो बनता है सर मैडम, वो तो नहीं, आपके मैं पास उसकी आता बात नहीं नहीं, कर रही, मैं इधर की बात वो कर वही रही हूँ। बनते होंगे, उसके नाम हो गए, लेकिन आपके पास हिंदी में वही इसलिए नहीं कि उसका नाम हो गया, जो बच्चा होगा सफेद शर्ट का वो
भी होगा। क्या वजह है? हाँ, जो मैडम आपने अभी इन्होंने बताया कि स्कूल एक दूर में है, एक तो स्कूल जो है पास में, वहाँ तो बच्चे आते हैं, जो स्कूल दूर में है इसकी वजह से बच्चे नहीं आते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो स्कूल दूर में है उसके लिए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव स्कूल का अरेंजमेंट किया है। तो वो स्कूल क्या पास में है? नहीं, वो 3 किलोमीटर मैडम, वो 3 नहीं, तो जो गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पर जाते हैं। गाँव के बच्चे नहीं, वो तो वो फार्म के, जो फार्म के होते हैं बच्चे वहीं वहाँ पे आते हैं। 1 से 4 तक के बच्चे, अच्छा। 1 से 4 तक के बच्चे वहाँ आते हैं, और 5 से तो वहाँ यहाँ एंटर हो जाते हैं प्राइमरी, वो आ जाते हैं। छोटे बच्चे उसके लिए आते हैं। फार्म हाउस ऊपर है, और दूसरा कारण सब फार्म हाउस में रहते हैं। दूसरा कारण गरीबी है। यहाँ की जो लोग गरीब, उनके खेत में काम करने की जरूरत पड़ती है। नहीं, तो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, वो क्या खेत में काम करेंगे? वो मदद कर सकते हैं, हमारे बच्चे की वावेतर होता है इन सब। तो स्कूल जो होती है 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए, आज हम 521 तक पहुँच गए थे। वो हमारा वो मेहनत शिक्षकों का और सभी गांव लोगों का प्रयत्न से हुआ है। अच्छा, वो प्रयत्न हुआ है ना, वो प्रयत्न। तो चलिए आप लोगों का क्या प्रयत्न हुआ है, गांव के लोगों से ही सुन लेते हैं। क्या इनकी जो प्रयत्न हुआ है अभी गांव में शिक्षा को लेकर के, स्कूल को लेकर के, या आप लोगों के पास जाते हैं बताने के लिए कि आप अपने बच्चे को भेजिए स्कूल में, वो आप लोग इस बात को मानते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया? हमारे मीटिंग करते हैं, वो कुछ उनको मीटिंग भी करते हैं, वहाँ भी आते हैं। यहाँ 7वीं बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए नहीं आता था। आज से 7 साल के 8 साल पहले जो 7वीं कक्षा में बच्चा पढ़े उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन आज हम गारंटी के साथ कहा था कि एक भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता, ऐसा हम कहा था। वो हमें काम किया है। यहाँ शाला के लिए, शिक्षा के लिए हमने काम, हमारा शिक्षक मित्रों ने, स्टाफ मित्रों ने काम किया। हमने नहीं किया, वो हमने आपके नहीं, हाँ नहीं, वो बरसात के कारण ये सारूद बनावવામાં આવે છે ને, તમારું સારી છે, તમારું સારી છે, સારું છે, खाना अच्छा मिलता સારું છે ને ભાઈ? मैडम आपको ये बात करूँ कि अभी तक यहाँ गाँव से एक भी सर्विसमैन नहीं है, लेकिन 9 मैडम है और 3 ही जेंट्स है शिक्षक में भी। अभी वही सब तो बहनों से, हाँ हाँ, सारे टीचर में 9 बहनों से। टीचर है मैडम, 9 टीचर और नहीं, 3 यूजुअली जो महिला टीचर्स होती हैं वो अच्छे से अच्छा काम फायदा होता है। और उसका भी अच्छा से उसका वो परिणाम मिला है, होता परिणाम है मिला है। कि जो लड़कियां आती हैं फिर वो जाती है स्कूल में पढ़ने के लिए, कि जो टीचर है वो भी लेडी है, तो परिवार को लगता है ना कि वहाँ पर लेडीज लोग हैं, तो अपने लड़कियों को भी वो भेजते हैं वहाँ पर स्कूल में। और हम लोगों को कहा जाता है कि जहाँ आप अगर एक आदमी को पढ़ाओ तो सिर्फ वो आदमी एजुकेटेड हुआ, वही आदमी शिक्षित हुआ, लेकिन अगर एक लड़की को पढ़ाओ तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वो लड़की अपने बच्चों को पढ़ाती है, 100 वो टीचर के समान मानते हैं हम, 100 टीचर के समान। बिल्कुल, एक लड़की को अगर पढ़ाते हो आप तो कम से कम 100 लोग शिक्षित होता है। वो अपने माँ बाप को भी पढ़ाती है, कभी उसके माँ बाप अगर नहीं पढ़े लिखे, अनपढ़ है, तो अपने माँ बाप को भी पढ़ाती है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है, ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी पढ़ाती है। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाना, अभी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी बताते हैं कि कन्या के है ना यहाँ पर अभी जो कन्या केळवणी महोत्सव, तो उसमें सारे के सारे जो सेक्रेटरी हैं वो लोग भी आते हैं हमारे गाँव में आकर के कि हाँ कन्या को आप लोग स्कूल में भेजो करके। अपने कौन आया था? 20 नहीं, इस साल सेक्रेटरी कौन आया था आपके यहाँ हमारे यहाँ? वो प्रॉपर व्यवस्था है कि आप लोगों को लगता है कि उनके लिए अलग से कुछ होना चाहिए? यहाँ पर बराबर व्यवस्था है, मतलब स्कूल भेजने के लिए, या कोई कठिनाई होती है? दूर में है स्कूल या वहाँ पर अच्छे तरीके से स्कूल का वो रूम्स नहीं है, या नहीं रूम तो पूरे है, स्कूल का प्रॉब्लम है। हाई स्कूल नहीं है, मेन जरूर हाई स्कूल नहीं है तो हमारी बहनों वहाँ बढ़ी सकती। शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा है, तो आप लोगों से कोई मत ली गई? क्योंकि अभी से शुरू हो गया है गुजरात में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, राइट? तो जो अभी उन्होंने प्लान बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो यहाँ ग्राम से तो शुरू माध्यमिक शिक्षा का है, वो तो आप लोग कर रहे हो यहाँ हाई स्कूल मार्ग के लिए आपका कुछ राय लिया गया? कोई नहीं हाई स्कूल भी कोई रजूआत पहली થાય છે હાઈ સ્કૂલ બાબતની। मूल बात है मैडम, हमने अभी तक हमारा काम है प्राथमिक अभी कवर हुआ है। अच्छा, हाई स्कूल अब आगे बढ़े गांव लोग 8वीं कक्षा में अभी तक पढ़ाई करे लोग, ठीक है? अभी जब 8वीं तक पढ़ाई कर लिए तो उसके बाद तो उसके आगे भी तो पढ़ाई है ना, कि 9वीं का क्लास होगा, 10वीं का क्लास होगा, तभी मैट्रिक में पास करेंगे, तभी तो टीचर बन पाएंगे सभी लोग, या कहीं पर उनको जॉब मिलेगा।
8वीं क्लास में तो किसी को कुछ भी जॉब नहीं मिलता है, शहर में हो या गांव में हो, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उसको पढ़ाई करने के लिए आपको 8वीं से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो 8वीं से ऊपर पढ़ने के लिए स्कूल भी होना चाहिए। तो स्कूल करने के लिए एक अभी गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है जिसको हम लोग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बोल रहे हैं। हाई स्कूल नहीं बात से हो, प्राइमरी तो खत्म हो गया, जो प्राथमिक शिक्षा था, जो 8वीं क्लास तक था या 7वीं क्लास हमारे गुजरात में 7वीं कक्षा तक था, वो तो कंप्लीट हो गया। 8वीं से ऊपर पढ़ने के लिए एक नया अभी अभियान शुरू हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है अभी? એના માટે ને આપણા પાસે કોઈ જાણકારી નથી છે ભાઈ? કોઈ નથી. हाँ नहीं है। આજે જોણ મામા અમે આજે જ અમે તમારા આજે રજૂઆત જ મોકલ. अच्छा ठीक है। तो अभी के बाद से ये हम लोग का जो अभी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तालुका लेवल पे प्लान होगा पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान होगा, फिर पूरे गुजरात का प्लान बनेगा, फिर पूरे नेशनल मतलब इंडिया का प्लान बनेगा, भारत का प्लान बनेगा, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग अपना इस अभियान जो इनका जो है नीट, वो हम लोग फिर अपने तालुका वाले और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो 8वीं क्लास से ऊपर में जो उसके बारे में बात की, और मिड डे मील के लिए हमने बात की। तो अभी कह रहे हैं मिड डे मील तो सबको मिल रहा है। अच्छा, स्कॉलरशिप्स जो है, हाँ हाँ, तो वो आप लोगों को मिलता है नहीं मिलता है? પૈસા મળશે શાળામાંથી? प्राथमिक शाळाમાં તમારા બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ मिलता है? મળે. अच्छा, तो इधर कोई बच्चे, आप कौन से બોલ 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 બોલ। પેલો તું બોલ, તું કયા ક્લાસમાં છે? 11માં 12માં। आप कौन से स्कूल में जाते हो? दोनों बने हाई स्कूल। कितनी दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर है। कैसे जाते हो? हाँ। ऑटो में जाते हो? ऑटो में। अच्छा, तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है स्कूल जाने के लिए? शिष्यवृत्ति ये मिलता है? अच्छा, वो साइन कराने के लिए इधर प्राइमरी टीचर का साइन होना चाहिए, वो नहीं होता है। उसके बाद मिलता ही नहीं। उसके बाद मिलता नहीं है, 10 के बाद 10 के बाद मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? आप अभी कौन से क्लास में? 500 से 1000 तक से मिलती है। नहीं, आप कौन से क्लास में? वो तो पीटीसी कर रहे हैं। आप पीटीसी कर रहे हैं? प्राइमरी टीचर कर दिया उन्होंने 11 बार किया है मैडम, किया है, उन्होंने किया है। हाँ, मुझे पता है कि आपने किया है, आपको मिला था। हाँ हाँ, पोस्ट मैट्रिक के बाद आपको मिला था। अभी आपको पीटीसी में कितना मार्क्स आया? 82%, 82%। तो 82% वाले को तो प्राथमिक शिक्षा में ले लेते हैं ना, भर्ती करते हैं, तो वो भर्ती हो जाएगा। हमारा पहला होगा, इस गांव का पहला इस गांव का पहला टीचर है ना। आपके गांव से ही पढ़ाई करके आपके गांव में ही पढ़ाएंगे, तो ये तो सबसे अच्छी बात हुई ना। तो ऐसे ही सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ाई करे। तो जब पढ़ाई करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। सारा फिर आप जाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए, तब तक कोई कुछ नहीं देगा, कोई ना दे, है ना। वो कहते हैं कि माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक कि बच्चा रोता नहीं है, बराबर। तो इसलिए हमें बोलने की जरूरत है, और आप लोग तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि आपको पता नहीं कि हमारे लिए क्या सर्विसेज हैं, क्या स्कीम है जो कि गुजरात गवर्नमेंट की है या भारत सरकार के गवर्नमेंट की स्कीम है गांव के लिए। और गांव के लिए बहुत तरह तरह की स्कीम होती है, वो हेल्थ से हो, मतलब स्वास्थ्य से हो, आरोग्य से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। अब तो मैडम हर साल बच्चों की चेकिंग भी किया जाता है, आरोग्य हेल्थ के प्राथमिक शिक्षा सभी दिन आते हो। अच्छा, अच्छा, ये आप लोगों ने ये इसका नाम, आप ग्राम पंचायत के पास कुछ लेने के लिए आते हैं, आपको मैडम प्रश्न पूछते हैं, हाँ कहना। अच्छा, तो ये आप लोगों को क्या क्या सर्विस देते हैं, मतलब क्या क्या फॉर्म देते हैं या कोई सर्टिफिकेट देते हैं, क्या देते हैं? 8 12 8 कभी बंद भी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कोई बहुत खराब बात नहीं है। अभी अगर आदमी बीमार पड़ सकता है तो मशीन भी बीमार पड़ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर ये आप बोलते हैं आप लोगों को कि अभी ये प्रॉब्लम आ गया है, अभी कल नहीं परसों में आइए, ऐसा होता है ना। हमारे इसमें बने पीटी पे एक नવો कॉम्प्यूटर છે પૂરો મળી જાય અમારો, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। આજે आज कभी वापस भेजता नहीं हमको। जमीन उतारा नहीं मतलब 7 बार नहीं गए અમારે જમીન ઉતારા લેવા હોય, હાથ બહાર લેવા હોય, દિશા લેવા જવું પડે, કોમ્પ્યુટર આવેલ પડ્યું છે તો એમને જોઈન્ટ દિશાથી જોઈન્ટ થઈ જવું પડે રેકોર્ડિંગ।
એટલે વहीं મળવા મળે लाइन में खड़ा रहना पड़ता है इधर 4-5 कलाक। ये लाइन में 2 કલાક આવે 4 કલાક આવે અમે આને વળી ના એ મળે તો વहीं અમારે કોમ્પ્યુટર તૈયાર પડે છે તો એને ખાતાની રેકોર્ડિંગ જોઈન્ટ થઈ જવું જોઈએ ઓઢવા મળી જવા लाइन लगाना पड़ता है 4-5 कलाक। નથી મળતા ડીસા મળે છે એટલે ડીસાનું રેકોર્ડ વहीं જોઈન્ટ થઈ જવું છે વहीं મળી જાય ને वो इधर लाइन लगता है 4-5 कलाक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा ओके, तो नरेगा का क्या बता रहे थे आप? नरेगा લોકોને ઘરેથી બોલાય કે ભાઈ તમે મજૂરી આવો ક્યાં લો બરાબર છે તમે મરાઠી આવો આપણે અહીંયા રોડ ઉપર મને કામ શરૂ કર્યું તો અમે હમણાં ગામમાં પ્રયત્ન કર્યો આ ભાઈ આ ગામના સ્થાનિક છે એટલે એમને પણ એમના ઘરે એસસી છે એટલે એમને પણ એમના ઘરે ફરી બધાને બોલાયા એટલે એમને ક્યાડ તમે લો અને મજૂરી આવો બરાબર એનઆરઈ જે યોજના અમે વારંવાર ગ્રામ સભામાં સમજાવીએ છીએ એ મજૂરી યોજના છે જે કેન્દ્ર સરકારની છે જેમાં આપણને આપણા કામના પ્રમાણમાં વેતન મળે છે બરાબર એમાં तो ये वाली बात इन्होंने जो अभी बताई ये पहले बताया गया था आप लोगों को या पहली बार सुन रहे हैं? आप लोगों को बताया, आपको पता है क्या होता है ये एम्प्लॉयमेंट योजना? बेरोजगारी जैसे आप लोग जैसे कि आप लोग आपका वेतन कितना है? को बेरोजगारी का भत्ता मतलब 100 रुपया एक दिन का। तो अगर आप लोग 30 दिन काम करेंगे तो बिना कोई पढ़ाई लिखाई के बिना टीचर बने आप लोगों को फिर भी 3000 रुपया मिल सकता है महीने का। ठीक है, और वो काम क्या करना है, ये नहीं कि आपको गांव से कहीं बाहर जाना है, आप अपने घर में रहिए और अपने गांव के ही तरक्की के जो भी कोई काम है उसमें आप लोग हाथ बटाइए, है ना। जो कि कोई प्रोग्राम बनेगा या कोई प्रोजेक्ट बनेगा, हो सकता है आपका रोड ठीक नहीं है तो रोड को ठीक करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनेगा, या आपके गांव में कोई तालाब की जरूरत है तो तालाब को खोदने के लिए वो काम करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। या आपके यहाँ पर कोई ऐसा है कि किसी को पेड़ वगैरह को काटने की जरूरत है या वृक्ष लगाने, ये पर्टिकुलर योजना में आप लोग क्यों नहीं भाग ले रहे? मेरी बात सुनिए। हाँ, अब मेरी बात सुनिए कि अपना काम करना, आप लोग कहीं दूसरे गांव जाके काम तो नहीं कर रहे, अपने घर का काम करना, अपने गांव का काम करना, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। अगर मैं अपने घर में, मेरा घर का कुछ टूट गया या मैं अपने घर में खाना बना रही हूँ तो ये बेइज्जती की काम तो नहीं है, ये तो मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, मेरे परिवार को खाना खिलाऊंगी मैं बना करके, तो ये कोई छोटा बात तो नहीं है। अभी गांव में अगर आप अपने रोड को मरम्मत करने का काम कर रहे हो तो वो कोई छोटी वाली बात तो नहीं है। ये तो मतलब अपने गांव का ही अपने आप वृद्धि करोगे, अपने गांव को आप सबके लिए करोगे, आप 10 लोग को बताओगे कि ये जो गांव बना, ये जो रोड बना है इसमें मेरा भी योगदान है, मैंने भी उसमें, ये तो प्राइड की बात है, ये तो मतलब गर्व की बात है कि अपने गांव को आपने और भी अच्छा बनाया। आप बताओगे कि ये देखो ये जो पेड़ लगा है, छोटे छोटे पेड़ थे, अभी ये मैंने यहाँ पर पेड़ लगाया, यहाँ से वहाँ तक जो पेड़ लगा हुआ मेरा लगाया हुआ है ना। तो वो आपको अपने गर्व की बात है, ये नहीं समझने चाहिए कि हम मजदूरी कर रहे हैं। मैं भी मजदूरी कर रही हूँ, मैं भी अपने कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं भी मजदूरी कर रही हूँ, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी का क्या मतलब हुआ कि काम करना, और काम करना कोई भी छोटा काम और बड़ा काम नहीं होता। काम मतलब एक बोलते हैं ना, वर्शिप इज वर्क इज वर्शिप, मतलब कि काम जो है वो पूजा है। तो इसमें अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि हाँ मैं अगर मजदूरी करूंगा तो मुझे लोग मजदूर कहेंगे या ऐसा। मजदूर से ही तो एक एक चीज करके छोटे छोटे चीज बनता है ना। ये जो घर बना है उसको भी मजदूर ने बनाया, बराबर है। तो इस बात का प्लीज आप लोग ऐसे मत सोचो कि हम लोग मजदूरी कर रहे हैं तो छोटे हो गए। जो महिला है उनको भी कहीं जाने में तकलीफ नहीं होगी, आराम से बच्चे लोग स्कूल जा सकते हैं, आप लोग शहर जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो जितना कर रही है लेकिन साथ में आपका भी सहयोग होगा तो और गवर्नमेंट और आपका गांव जो है वो अच्छे तरीके से बनेगा। तो प्लीज आप लोग अपने को एनरोल कीजिए इसमें, जो है जोड़ाओ बराबर, તમે આમાં જોડાઓ, અમારી પાસે આવો, અમે જોબ કાર્ડ નવો અને મેળવો અને મજૂરી અમે બોલાવીએ ન બોલાવીએ તો પણ તમે સામેથી આવો કે અમારે મજૂરી જોઈએ છે, તમે જે આવશો એને તરત જ અમે મજૂરી ચાલુ કરી આપો। આપણે આયોજનમાં है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, आपके आसपास गाँव है ना वो राज्य, वहाँ पर बहुत सारे पैसे ले रहे हैं लोग। अपना गुजरात जो है उसमें ही लोग नहीं आ रहे हैं आगे काम करने के लिए, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार वो पूछ रही है, भारत सरकार वो पूछ रही है कि गुजरात में क्यों लोग आगे नहीं आ रहे हैं और पैसे नहीं ले रहे हैं।
तो सरकार आगे आ रही है आपको पैसे देने के लिए, और आप लोग आ नहीं रहे हो कंप्यूटर में वहाँ पर अपना दरखास्त दे करके कि मुझे अपने उसमें एनरोल करो, मैं भी भागीदारी लूँगा उसमें काम करने में। तो दोनों तरफ से ये गांव का भला होगा। आप लोगों के पास 3,000 रुपया महीने के आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे साल होगा, ये 100 दिन, मतलब 100 दिन पूरे साल में वो इंश्योर है। मतलब ये सरकार की जवाबदेही है कि आपको 100 दिन का वो देंगे, ये रोजगारी वर्ष में 100 दिवस, वर्ष में पूरे साल में 100 दिन का वो देंगे। तो जो हम लोगों का जो बेरोजगारी की जो समस्या है, सब लोग कहते हैं हमने पढ़ाई तो कर ली 8वीं तक, अब हमें तो कोई जॉब नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि वो इतना पढ़ाई करके भी टीचर बने हैं, उनको 6,000 रुपये मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको 20,000 और 40,000 रुपया मिलता है। तो आप लोगों को बिना कुछ किए हुए अपने घर में रहते हुए अपने घर इसका अपने विलेज का विकास करने में जो काम है उसमें नाम लखाओ छो एम कोई मुश्किल पड़े में नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आपका नाम बेटे हो गया એટલે એવું તો આપણે તકલીફ પડે છે કે નથી પડતી? तो इनको कौन हेल्प करते? ग्राम सेवक हेल्प करते हैं? ग्राम सेवक नहीं है। आपको नाम पता है? नाम खबर છે ગ્રામ સેવક નું નામ શું છે? કેટલી એક પણ વખત પણ તમને કેમ લેતા? તમે અરજી કરી કે મને બીપીએલ માં લાવો ભાઈ? એ તો કહું છું કે બીપીએલ માં કેમ તમને નથી આવતો? એટલે નથી આવતો અભિમાન લે તો ઘણા લેવા જેવા છે લોકો, ઘણા લોકો લેતા નથી અને જેને આવે છે સવાલ જ નથી। હા એટલે એ લોકોને તકલીફ ના પડે, એ લોકોને તકલીફ ના પડી હોય એટલે ગ્રામ સેવક આવતો નથી એટલે લાભ મળતો હોય। ગ્રામ સેવક ઠાકોરના છોકરાને કોઈ ઇન્દ્રાવાસ બંસી પગમાં નહીં મળે, બંસી પગ પર ઠાકોર છોકરો મત ना यार लेकिन सरकार की योजना क्या है, एक एकड़ जमीन मेरा जमीन ज्यादा એટલે ખ્યાલ છે। नहीं तो इनका तो नाम नहीं आएगा। बताइएगा गाड़ियाँ पर जमीन एकड़ में ज्यादा बोलता है, जमीन 1 एकड़ से ज्यादा बोलता है। किसको मिला है? जमीन का ज्यादा पड़ता है, जमीन का मेरा સિવાય તમારે કોઈ ગામની અંદર અન્ય કોઈ જરૂરિયાતો ખરી? જરૂરત પૂરતું પેલું લીસ આનું જાય છે તલાટી સાહેબ પાસે જરૂરત આપણે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ એટલે ખેતીની લેબોરેટરી આપણે દિશામાં છે, કદાચ લગભગ બધાને ખબર હશે, ખબર બરાબર? તો તમે એ ખેતીનો નમૂનો લઈ જઈ આપણે જાતે જ એ કોઈએ કરાયું છે? કરાયેલું છે, કે તમારા આ જમીન ઉપર કયા પાકો થઈ શકે એનો તમારા જમીનમાં और आपको ये मूवमेंट मैडम ने बोला कि सैंक्शन हो गया है, आपको भी बोला, आप आंगनबाड़ी में गाने लगता है जब भी आपको ये मूवमेंट मैडम बोलती है कि बिल्डिंग हो गया या कोई भी होगा कि आपको कुछ मिल गया, आप उसका लेटर लेंगे, पत्र लेंगे, तो आपके पास वो अंदर की साइड
साइड है वो, क्योंकि उनको साधन नहीं मिलता। 3 साधन हो तो प्राइवेट साधन करता है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए पीएचसी बहुत दूर में दूर पे है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बहुत ही काफ़ी जगह है। अच्छा, और ये सब सेंटर किसको बोलते हैं? सब स्टेशन सब सेंटर है नहीं, सब यहाँ हेल्थ सेंटर यहाँ पे है। सब वो लाइन चलता है रेलवे लाइन, वो फाटक बंद करता है रेलवे लाइन, जाने आने में नहीं, तो खुला तो कैसे रहेगा? अगर वो रेलवे है तो वो रेल आएगी वहाँ से। हमारा कैसे बंद होता है? अच्छा ठीक है, मुझसे ले लेंगे। वो क्या बोल रहे हैं आप? 50 वर्ष पूरा से वो रास्ता खुला था, वो रेलवे थी, अभी आज कोई बंद कर रहे हैं? आज कैसे बंद कर रहे? 50 वर्ष पूरा हो गया तो खुला था। कोई तारीख को नहीं याद है, मुतमन के 1956 में इसका लड़ाई हुआ लाइन नखानी 56 के यार તમારે શું કહે જૂના ટ્રેકના ફાટક બંધ જ રાખ્યા, તમને જવા દેતા નથી, પહેલા જવા દેતા, હવે બંધ કરી બસ તમારે વાત કર્યા નથી, હવે બંધ करवाना ये पानी नहीं तो ड्रिंकिंग वाटर क्या दूसरा बनाने का है, दूसरा नहीं बनाया, नहीं बनाया। आप लोगों का जो गांव का क्या जरूरत है? पड़ गया। આપણી મીટિંગમાં બેસવાનું છે ને? अच्छा अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये 10% आप लोग भर नहीं सकते थोड़ा सा पानी के लिए? भाड़ा चालू है गांव में, थोड़ा हमारे बिजली सेंटर है, बिजली सेंटर बिल भरने के लाइट बिल वो 50 रुपये लगता है किराया। नहीं बताइए, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मालूम? एक सेकंड आप बात बिल नहीं है, इसके लिए सीधा रोड उधर पड़ता है हमारे। रोड बनवाने रोड बनवा दो। नहीं बिजली का बिल यहाँ पर उसका बिल चलता है, मोटर चलता है, उसका बिल आता है। बिजली का बिल चलता है, उसका बिल आता है, बिल तो भरने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, गाँव में नहीं भरता है। गाँव में ये बैंक में होती है, पोस्ट में होती है, वो गाँव का बिल लेता है, गाँव का वो फार्म हाउस का बिल इधर लेता है। नहीं तो वही तो कह रही हूँ, तो ये अगर गांव में हो जाए तो आप लोग को आसानी होगी, आसानी होगी ना। तो ये अच्छा, और जो घर का जो बिजली का बिल आता है, घर का भी बिजली आगा है, वो पोस्ट में लेता है। खेत में रहता हूँ, वो खेत का गाँव में लेगा तो सरल पड़ेगा, जो बिल भरेगा तो वो बरोबर नहीं जो बिल आता है वो सही आता है, बिल में कोई प्रॉब्लम करो, बिल आवे से हम कोई प्रॉब्लम काट के जाता है, नहीं भरेगा तो काट के जाता है। काटता है। वहाँ जाते हो 5 मिनट से? अच्छा तो वहाँ पर क्या क्या सुविधा है? तो दिशा में कितना बहुत लाइन लगाना पड़ता है? लाइन लगाना पड़ता है, तो क्योंकि वो चीज़ तो इनको यहाँ पर मिलना चाहिए, ये तो नोट कर लिया है ना। वो सब लोग को क्या तकलीफ है, हमारे
ગુજરાત ડાકઘરનો અહીંયા નાખેલું છે ગુજરાતમાંથી કે આખા ભારત દેશનું લેવલે હોય બરાબર પણ એમાં ડાક 4 घंटा तक लाइन तो इनको फिर वो चीज यही मिलना चाहिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो चीज इनको दिशा जाने की जरूरत ना पड़े। वो 50 रुपया ऐसा करना इसका टाइम बगड़ता है। हाँ टाइम लगता है, पूरा दिन टाइम जाता है उसमें। हाँ ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि वो चीज़ इनको क्यों नहीं मिलता। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर उनका जाना पड़ता है और रिक्वेस्ट देते हैं वो, और वहाँ पर उनको देरी लगती है, तो ये लोग फिर वेट नहीं करते, वहाँ चले जाते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ। आप लोगों को वो जो 7/12 है 7/12 यहीं पर है, तो पानी का प्रॉब्लम में ये हुआ कि आप लोग भी भागीदारी दो, 10% निकालो तो सरकार भी देगी पैसा और मिला करके आप लोग बनाओ, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इधर ही होना चाहिए, उधर नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। ये ती बनत आहे केंद्राમાં થાય છે યાર એટલે આપણા એક જિલ્લાના જ છે કે બિઝનેસ છે ના ભાઈ મને એવું હાસું લપડે છે ગુજરાત લેવલ કે ખાલી બનાસકાંઠા માટે આપણા ડાક જો નવું પ્રોડક્શન માટે चाहिए गैस, जो चूल्हा जो जलाते हैं वही बनाती है, वो जो लोग हैं वो लोग बनाते हैं। तो आप लोगों को क्या मतलब, तो उसमें लकड़ी से बनाए किसी से भी बनाए, परेशानी तो उनको होती है, आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, सही बात। મેન જરૂરી જોઈ नहीं वो केंद्र की योजना है मैडम, वो बात कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन योजना आपको पैसा मिलता है, वो यहाँ मैडम के मैंने पेन तलाटी नो को तो हां तो मैं गया था वो योजना तलाटी करके किया था पता है कि उनको पेंशन मिला गया था नदी मदीना साहिब हवे आया कुछ उनको पता है उनको पेंशन मिला वो है क्या था दूसरे तलाटी के पास हम गए थे गया था लेकिन अभी कौन सा तलाटी तो ये है ना, नहीं बदला अभी आया ये अभी आया है। तो अभी आप इन लोगों का एप्लीकेशन लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये विधवा भी है और विधवा भी है। આપણે અહીંયા ઓફિસમાં હું હોઉં ને એ વખતે આવજો બરાબર। आपको कितना बताया पेंशन? જે વિધવા હોય ને એ લોકો બેન मैडम आपको ये कहते कि आप अब अर्जी करो तलाटी साहब के पास के फॉर्म लेके और उनको भेजो। आपको भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता, तो आपको पेंशन मिलता है नहीं नहीं मिलता ना, तो उनको तलाटी श्री आप इन लोगों का प्लीज देख लीजिए और फॉर्म इन लोगों का नहीं और भी जो गाँव में हो उसको पची तो आपको लिखा देंगे तलाटी साहब पची लगे ना भरत एक बात बधाई करो भाई તમે નોમ નામ આપજો મને આ બેન કીધું મને आप हमें देख लीजिएगा कि इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए या विधवा पेंशन, जो जैसा गाइडलाइन है। आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी में ये काम करते हैं। हाँ ठीक है, पर मैं मुझे कपड़ा देखकर समझ में आ गया।
अच्छा तो ये बोलते बीपीएल हैं और आंगनवाड़ी में काम करते हैं। अच्छा, तो आप 30 साल से ऊपर के हैं तो उन लोगों को सरकार काम देती है कि वो काम कर सकते हैं। तो जैसे आपको भी आंगनबाड़ी में रखा है और जैसे 60 साल की है वो विधवा है ना, वो जो वृद्धा है वो काम नहीं कर सकती तो उनको पेंशन मिलता है। ठीक है, सरकार कैसे ही है। हमने बीजू पर काम મળે તમને તમારી ઉંમર થાય પછી તમને પેન્શન મળે। तो आपका जब ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो आप फिर जाइएगा इनके तलाक के पास जाइएगा, फिर आपको पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। सभी को बैठा तो बात करने का बचाएंगे आप, गर्मी भी नहीं लगी। सर बैठ जाओ सभी। मैडम उसको बताने का ये तुम्हारा फोटो है। हाँ तुम्हारा फोटो है एलपीजी गैस उसको थोड़ा सिलेंडर मिलना चाहिए। हाँ बरोबर એટલે 5-6 વાગ્યા સુધીમાં આવી જશે બરોબર। हाँ तो एक मिनट આનાથી વાત કરું। મુદ્દા તો આપણે લાઇટ કનેક્શન નવું લેવા માટે બરાબર। चलो सब बैठ जाओ। तो वो किस रेट में लेता है आप लोगों को पता होता है, किसके बेसिस में पता होता है, कंप्यूटर में दिया रहता है। કોઈ બી લેવા દો ને તો બિયારણ એરંડાના તારે 1 કિલોના 450 રૂપિયાથી બોલો। તો અમને માર્કેટ છે કોઈ બી જે બિયારણ ખૂબ ये रजिस्टर्ड सीड्स रजिस्टर्ड सीड्स जो बी होता है ये उगाने के लिए ये बी महंगा होता है ऐसा बोलता है। 1 किलो का 600 रुपया 400 रुपया 200 रुपया 20 કિલો લઈ લેતો। आप लोगों को कोई बताता है તમને કેટલામ મળે તો સારું, કેટલામ વેચો તો સારું। તમારે ઘણું છે પણ કોણ હાલે વેચવા છે ને અમારે તો વેચવા તો તારી ઘણો જેટલો ભાવ અમારે ઈંડાનો 300 રૂપિયા ઈંડા છે બરોબર છે તો એના અંદર 500 રૂપિયાનો 20 કિલો का 300 500 રૂપિયાનો ડીએપી કિલો का 600 રૂપિયા અત્યારે 450 રૂપિયા ખેડાઈના પછી અમારી મહેનત મજૂરી લાઇટ બીજી બાનમાં લાઇટ બિલ અને ઠકડે અમારે અત્યારે હાલ ઓડા ये बोलते हैं उर्वरक महंगा पड़ता है। पता नहीं है लेकिन उसको आपने तो गलत कह रहा नहीं तो मैं क्या कह रही हूँ कि 300 रुपया आप लोगों को तो 300 रुपया से लेके जाता है और मार्केट में जाकर के वो 600 रुपया में बेचता है। सही है, या हो सकता है वो मार्केट में जाके 500 रुपया में बेचा, तो आप लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो आप लोगों से खरीद रहा है उसको ज्यादा फायदा हुआ जो लेकर के गया यहाँ से। ठीक है मैडम, वो बेचने के तो आप लोगों को बताया जाए कंप्यूटर की तरफ से कि आप धान लगाते हो, चावल या गन्ना या क्या नाम है मक्का या बाजरा जो भी लगाते हो तो उसका क्या भाव होना चाहिए, गेहूँ सबका क्या भाव होना चाहिए और इसी भाव से आपको बेचना है मार्केट में। अगर ये कंप्यूटर में आपको सिस्टम में पता चले तो जो बीच वाला है आदमी वो तो फिर बोलेगा ना कि हाँ अभी मार्केट में तो ये भाव है, तो आप लोग इस कम भाव में क्यों बेचोगे। आप लोग फिर उनको बोलोगे कि नहीं भाव तो इतना होना चाहिए। ये पैसा लाया रो बेन हम तो बोलता है ये को का ट्रेंड है बैठी टके पैसा लाया ना भाई कहते हैं काका नालो में पड़े देता है हमारा यहाँ कुछ चलता नहीं, मार्केट में हमारा कुछ चलता नहीं, भाव नक्की करता है वो उनको कम पड़ता है, वो ये बात कर रहे हैं।
अच्छा वो नक्की किया है, वो कम पड़ता है हमको कम पड़ता है। एरंडा का दिवेला का भाव अभी तक 500 और 600। आपको पता है कि ऐसी एक संस्था है जहाँ आप फोन कर सकते हैं? તમે અહીંથી ફોન કરો તમને ભાવ હોય બેઠો જોડવા મળે પણ એ તો જાયને શું કરવાનું એમને આ લોકોને? नंबर दो ना, तो हम करते हैं फोन। ये जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है, वो गवर्नमेंट ने तय किया रेट ही वो मीटिंग है। वो तो अब छापा पड़ता है, वो जान सभी के स्थलों के भाव जान में क्या भाव है, किस्सा में क्या, पालमपुर में क्या भाव है। इनको पता है कि नहीं पता है? उनको तो व्यापारी से ज्यादा पता है, लेकिन ऊपर से भाव जो नक्की किया हुआ है वो ही प्रश्न उनका मैडम अभी कह तक। रहे हैं कि नक्की किया हुआ नहीं। आपके यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बात करते हैं? ग्राम सभा में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं। हमारे यहाँ दोनों मैडम दिल्ली से पधारे और उनके साथ भी ताविया साहब भी पधारे, नायब जिला विकास अधिकारी साहब भी पधारे और अपना नायब टीडीओ भी तलाटी साहब टीडीओ साहब भी पधारे, मोडिया साहब विस्तरण अधिकारी पधारे। उन सभी ने हमारे वडवागा का भाग्य हुआ कि आपको जानकारी दी, इनसे आपको कुछ फायदा होगा, कुछ न कुछ तो फायदा आपको जरूर होगा, क्योंकि आपको पता चला कि यह कार्यक्रम चल रहा है, वो आपसे जानने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने आपको ज़्यादा दिया है। वो दोनों आपसे जानने के लिए आई थी, लेकिन आपको हमने उनको ज़्यादा दिया है कि यह कार्यक्रम चल रहा है, यह अपने हाजिरी दी, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करूँ, सभी का आभार और छेले ऊपर वाले का आभार व्यक्त करूँ। अस्तु भारत माता की जय। काम करेंगे हाँ जॉब कार्ड काम कर सकते हैं, इतना हम आपके दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग अभी मतलब युवा हैं, आप लोग काम कर सकते हैं, वो सब है ना? हाँ, अभी आप लोग मतलब तैयार है काम करने के लिए, तो आप लोग अपने के लिए भी वो होगा कि कुछ एक्सपीरियंस होगा आप लोग को काम करने का, है ना? और पैसे भी मिलेंगे तो आपके फैमिली को भी आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट का ये ऐसा है योजना है, तो आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है? यहाँ दो काम इसके थ्रू तो बहुत सारे सर्विसेज उन्होंने कहा था कि प्रोवाइड होता है, सपोज टू बी प्रोवाइडेड, बट इट इज नॉट वर्किंग हियर कंडीशन। सो दो सीएससी एंड एक ही रूम में है, एक ही रूम में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वो फ्री में तो नहीं करता था, ठीक है? तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है देखने का कि वो काम कर रहा है। बिजली कनेक्शन का बिल नहीं दिया, नहीं दिया, बिजली कनेक्शन बिल नहीं देता, भाड़ा नहीं दिया। आपने कभी भी किसी को बोला है कि सीएससी से कोई नहीं आता, मतलब कहीं पे हमारे पास आएगा वो बैठा है, वो आता है। अभी आपने किसी को बताया था, कंप्लेंट की थी कि यहाँ पे सीएससी है वो नहीं आता, नहीं आया, पैसा सभी कंप्यूटर में एटीएम से नहीं आता। और क्या काम होता है? નરેગાનું તો પછી થવાનું ત્યાં ચાલતી બરાબર છે. તમે જે ફોર્મ બતાવે એના ના ફોર્મ બધા और क्या सर्विसेज है? ग्राम सभा में जो ऑनलाइन कार्यक्रम है वो दिखाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लोग आके देखते हैं? आप लोग कार्यक्रम देखते हैं यहाँ पर आकर? हाँ, आपने कुछ कार्यक्रम देखा है इसमें? लाइव प्रोग्राम देखा है अभी ग्राम सभा कहाँ पर? गांधीनगर से जो प्रसारित हुआ है आपने यहाँ पर आके देखा है? आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम देखा है यहाँ पर कंप्यूटर पे आकर? देखा है। क्या देखा है? ये हम लोग विद्यार्थी का प्रोग्राम करता है। हाँ हाँ बाल हाँ, वो देखा है। और आप लोगों ने कुछ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम चलता है वो देखा है?
ये हमें नहीं देखा। हाँ, आपने नहीं देखा खेती बाड़ी का चलता है कि खेती बाड़ी कैसे करना चाहिए, उसमें कौन सा बीज लगाना चाहिए, अभी आज हाजिर नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है। तो आप लोगों को पता नहीं कि यहाँ पर सब प्रोग्राम चलता है, या आप लोग आते नहीं, टाइम नहीं मिल पाता? अभी आएगा। हाँ, आप लोग आइए यहाँ पर, तो बहुत नई नई जानकारी होती है। आप उन लोगों से टाइम पूछ लीजिए कि कितने टाइम में दिखाऊँ, शाम के टाइम में दिखाऊँ तो आप लोग फ्री होंगे, है ना? शाम के टाइम में जैसे 7 बजे 8 बजे दिखाएं तो आप लोग फ्री होंगे उस वक्त में। अपने घर में नहीं आकर के ऐसे बना मतलब का बात नहीं करके यहाँ पर आकर के सीखेंगे कुछ, तो देखने को अच्छा से मिलेगा। ठीक है, अभी आएगा। तो अभी तलाटी, हाँ, आप ये जो प्रोग्राम यहाँ पर क्या चलता है, आप इनके साथ वो करके ना, इनको पता होगा कि क्या क्या प्रोग्राम चलता है, तो आप इनसे पता करके खाली बस पूछ लीजिए कि किस टाइम में चलाना है। वो टाइम तो आप कर सकते हैं ना डिसाइड कि नहीं, प्रोग्राम से टाइम फिक्स करो, लोगों ने सजेक्ट करो, आ टाइम में आओ, ये समय आपको। तो आप इनको बता दीजिए, प्रधान को बता दीजिए, स्कूल में बता दीजिए, तो स्कूल के बच्चों को पता चल जाएगा, तो अपने घर में भी आके बताएंगे कि ये सब प्रोग्राम अभी चलेगा वहाँ पर, तो जाकर के देखो वो अच्छा प्रोग्राम है। वो आरोग्य से होता है, एग्रीकल्चर से, एजुकेशन से, सबसे मिल करके होता है। तो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना, ये कंप्यूटर यहाँ पर छोटा सा चीज़ लगता है देखने के लिए, लेकिन इसको और ऊपर में जो एक लगा होगा छतरी, सबको लगाने में पूरे गुजरात में कितना पैसा खर्च हुआ है आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना पैसा खर्च हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका जो इतना पैसा खर्च हुआ उसका कुछ तो उपयोग होना चाहिए ना। तो यहाँ पर है, तो जो भी फैसिलिटी है आप लोग उसका उपयोग कीजिए, और जो भी प्रोग्राम चलता है उसका आप लोग उसमें आकर के देखिए, जानकारी लीजिए उसके बारे में, तभी तो उसका फायदा है ना। नहीं तो मैं बोलूँगी आप बंद कर दीजिए, यहाँ पर तो किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी वो कंप्यूटर बंद है तो हम लोग का रिपोर्ट में जाएगा वो। ये कंप्यूटर तो है लेकिन बंद है ना, उसको कोई चलाने वाला आता है ना, तो कोई कुछ करने वाला आता है, तो उसको ना तो या तो पैसे नहीं मिलने चाहिए, यहाँ का उनको सारा काम ठीक से करना चाहिए। ठीक है ना, तो जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हाथ लगे तुम्हें जवाब को આપણે ખેતી કરીએ જો ગમે તે પાણી પાઈએ છે सारा आ रहा है ना प्रोग्राम, देखिए सारा खेती से है प्रोग्राम। आप लोगों ने पहले देखा था, कभी नहीं देखा था पहले, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि खेती समय समय पर आता रहता है। गांधीनगर से यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम भाई बोलेगा हम शिक्षण पर, आरोग्य पर, खेती पर, तो आप लोग आके इनको बोलिए कि हमको देखना है। आप लोग 10 जन 15 जन आइए और देखिए। गतिशील खेडूतो पूरती सीमित थी, जे हवे गामे गाम प्रસરી રહી છે। રાજ્ય સરકારની ગ્રીન રેવોલ્યુશન કંપની આ આખા અભિયાનને ચાલક બળ પૂરું પાડી રહી છે। ગુજરાતના 10 ગામો જેના પ્રત્યેક ખાતેદારે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવી અને કૃષિ ઉત્પાદનમાં વિક્રમી વધારો કર્યો। गुजराती में है, પ્રેરક દિશાદર્શન કર્યું। બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકામાં જે વર્ષ 2005 પહેલા ટપક સિંચાઈનો શ્રી ગણેશ કરવા બાદ આજે ગામની 100% ખેતી માત્ર से દ્વારા જ થાય છે। 2005માં વર્ષોથી હવે પણ અમે ઇરિગેશન સિસ્ટમ અપનાવેલી ભારત સરકાર છે। અમે અમારા आप लोग को समझ में आया ना अभी, आप लोग अपने घर में जाकर के बताएंगे सभी को। तो सारी की स्कीम में आप जाकर के दिखाओ लोगों को
इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आपको ये मिल सकता है। नहीं, जितना स्कीम है सबका गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं विधवा की बात कर रही थी तो उसका भी गाइडलाइन इसमें पड़ेगा। अगर आप देखो रूरल डेवलपमेंट में, नरेगा में क्या स्कीम है, सर्व शिक्षा में क्या स्कीम है, राष्ट्रीय मिशन में क्या स्कीम है, हर एक का इसमें पोर्टल रहता है। पोर्टल में आप जाओगे नेटवर्क में और ये काम आप ही कर सकते हो। गाँव के लोग तो नहीं कर पाएंगे, इनको तो नहीं पता कंप्यूटर चलाना। आप चला करके इनको दिखाओगे कि देखो आपके लिए ये नहीं प्रोग्राम। जितनी लेडीज़ हैं उनको बुला के लाओगे, और जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें, तो आपके पास तो एकदम इन्फॉर्मेशन का भंडार है, क्योंकि कंप्यूटर है आपका सामने और आप चला सकते हो। एक ऑफ ट्रेनर कौन चला सकते हैं, उसमें जा कर के आप चेक करो कि किसका क्या है, किसको क्या स्कीम मिलने वाला है। जैसे ये है तो इनको क्या स्कीम मिल सकता है, या गांव के और कोई है तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। बहुत सारे स्कीम का गाइडलाइन दिया जाता है, कैसे एप्लीकेशन भरना है। आपको एप्लीकेशन तलाटी कोई आपको हेल्प करेगा या डीडीओ के पास जाना पड़ेगा, या आपको डीडीओ के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाता है। इसको पढ़ो और लोगों को बताओ आप, क्योंकि सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना। इससे इतना ही कर दोगे तो बहुत सेवा होगी गाँव की। और फिर उसी हिसाब से वो लोग फिर जाएंगे। प्रधान सर को भी बहुत कुछ नहीं पता होगा कि क्या क्या स्कीम चल रहा है, सही में, क्योंकि वो तो कंप्यूटर के सामने जाते नहीं उतना, उनको देखने भी नहीं आता। तो प्रधान सर को तो भी पता है, जो कि तालुका में अगर किसी से पता चल गया या किसी और गांव से किसी से पता चल गया। अदरवाइज तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है उतना ठीक है पता है, बट बहुत सब कुछ नहीं पता कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। आप यहाँ पर बैठ करके एक घंटा रोज बैठोगे यहाँ पर, ये आपको निकाल के देंगे हर एक मिनिस्ट्री का पोर्टल, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कम से कम 5 स्कीम है जो कि वुमेन के लिए है, चाइल्ड के लिए है, शिक्षा से रिलेटेड अभियान 5 है कि कितना क्या पैसा दे रही है गवर्नमेंट। तो आपको पता हो तो आप तो हर एक चीज़ के चेयरमैन हो, गांव के तो आप हेड आप ही हो, मुखिया हो, तो गांव के सारे लोग तो आपके पास आएंगे, है ना। तो अगर आपको पता हो कि कहाँ से क्या काम होता है, अगर आपको पता हो कि ये स्कीम का बेनिफिट कैसे मिल सकता है किसी को, तो आप उसी हिसाब से फिर टीडीओ सर के पास जाओगे, उसी हिसाब से डीडीओ के पास जाओगे, तो फिर आपको बताएंगे। वो क्या बताएंगे, फिर आप उनको बताओगे कि मुझे पता है, मैंने देख लिया है साइट पे। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको कि आपको खुद से सब कुछ पता रहेगा। सारा गाइडलाइन सब कुछ दिया रहता है उसमें। एप्लीकेशन इंग्लिश का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो समझ में किसी और को पूछ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है ठीक तरीके से। और जितना गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है वो तो सारा गुजराती में लिखा हुआ है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो इंग्लिश में है, लेकिन जितना गुजरात गवर्नमेंट का स्कीम है सब कुछ गुजराती में है। तो खुद से पढ़ो, खुद से अपने आप को समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। और जो लोग हैं आपके गांव में तो आपको सबको उंगली पे पता होगा कितने आपके बेरोजगार हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने जवान हैं बेरोजगार हैं, कितने खेती होनी है, कितने कृषि वाले हैं यहाँ पर। तो उसी हिसाब से उन लोगों को आप बुला करके दिखाओ और बताओ कि हाँ ये सब आपको करना चाहिए। आप एप्लीकेशन दो, आप रजिस्टर करो इसमें। तो अभी बैंक का जॉब कार्ड बनाने के लिए अभी बुलाया था वो सब लोग को, वो मजदूरी करने के रोजगार योजना में। तो अभी कोई आता है कोई नहीं आता है, ऐसा करता है। पूरा निकालिए थे आपका कुटुंब का वो फोटो, तो उनको जॉब कार्ड मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। अच्छा, तो फोटो नहीं निकल पा रहा है, कोई देता है कोई नहीं देता, ऐसा करता है। हाँ, तो एक बार गांव में आप किसी फोटोग्राफर को बुला लो, जैसे ये इसको बुला लीजिए कि वो दिन भर यहीं पर आएंगे। चलो सब लोग आओ। बाद में ऐसा ही किया, फोटोग्राफर को बुलाया। बिल्कुल, वो सारे फोटोग्राफर का भी बिजनेस हो गया, वो भी सबसे 10-10 रुपया ले करके वो अपना एक 10-10 फोटो लेके रख लेंगे। क्या पता किस ऐसा ही किया, वो फोटोग्राफर को बुलाया। तो आप लोगों को बुद्धि है, आप लोगों को पता है कैसे कर सकते हैं। गांव वाले को तो उतना ना पढ़े लिखे हैं ना उतना उनको अपने ही काम से फुर्सत नहीं है। तो आप लोग उन लोगों को बताएंगे तो ही गांव की तरक्की होगी, है ना। और कंप्यूटर जो है आप लोगों को ही सक्षम बनाने के लिए, कोई भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ में डला हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग यहाँ के दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ मेरा ये हक है, मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ इनके पास में आकर के पता कीजिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है। 140 योजना है, में क्या 140 हाँ 140 योजना है गवर्नमेंट सरकार की, लेकिन आपको कितने का लाभ मिलता है? तो क्योंकि आपको पता ही नहीं, जिनको मिलता है वो मिलता है, तो आपको पता नहीं इसलिए नहीं मिला, आपको भी पता इसलिए नहीं मिला, पता होने से मिलता है ना, उसको मिलता है क्योंकि उसने प्रयत्न किया, उसने जानने की कोशिश की तो उसको मिला। हाँ। वो हो सकता है वो टीडीओ के वो कोई जान पहचान वाले हो तो उन्होंने बताया पानी के लिए महीने से पानी नहीं है गाँव में, बता दिया। बेरोजगारी की तो बाद में आती है।
नहीं, इसकी तो बात हो गया, पानी की बात हुई ना कि 2.5 लाख रुपया चाहिए। पहले पानी चाहिए, वो बात सही है, लेकिन तो वो पानी के महत्व लिए है पहले पानी के लिए तो बात हुई ग्राम सभा में हाँ। कि जो भागीदारी वाला है स्कीम कि आप 10 रुपया दो, गवर्नमेंट उसमें आपको 90 रुपया देगी, तो 100 रुपया होगा, ठीक है ना। तो 2.5 लाख रुपया के लिए कितना पैसा चाहिए, पूरे गांव वाले लोग मिलाकर के देंगे। इसका भी एक ये है क्यों ऐसा किया गया, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अगर 2.5 लाख दे सकती है। गवर्नमेंट कितना देता है, आप बताइए सर। गवर्नमेंट 10,000 रुपया देता है, गुजराती में हमने 10,000 रुपया आपके काटा तो गवर्नमेंट 9,000 रुपया आप हाँ, ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं दे सकती। क्या होता है कि अगर वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पैसे से बनेगा ना, तो उसका कोई रखरखाव नहीं करेगा, वो कभी उसका हैंडल टूट जाएगा, कभी उसके किनारे में वो जाम तो हो गया। क्या बोलता है ऐसे लोग, वो क्या बोले, वो तो सरकार करेगी, कोई नहीं देने का फाले में, ऐसा ही बोलता है ऐसा लोग। तो ये तो गलत बात है, वो गलत बात ऐसा ही करता है। जहाँ सरकार 10,000 लोग करोड़ ऐसा दे सकती है, है कि कोई नहीं दे, कोई देता है उसको भी ना पाता है नहीं देने का, ऐसा ही बोलता है, ऐसा लोग तो फिर जब ऐसा तो बोलेंगे कैसे पानी पिएगा, तो फिर तो पानी का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। ये पानी 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 इधर से नहीं आता है, पानी अंदर से आता है। तो सहयोग वाली भावना आप लोग क्या है, गवर्नमेंट भी तो हम तो लोग से ऐसा ही लोग काम है, कोई ये व्यक्ति देता है उसको भी ना पाले नहीं देने का, तो वो तो करेगा, वो तो गलत बात है ना, वो तो गलत बात है ना। तो सरकार करेगी, तो सरकार करेगी तो फिर वो अपने हिसाब से करेगी। 4 महीने से मेहनत किया है, ऐसा लोग आता है, कोई आता है देता है नहीं देता है तो उसके पास नहीं मांगता है। 500 रुपए का तो सिगरेट पी के खत्म हो जाता वो है, करता है, वो जलसा करता है, ऐसा में वापस देता नहीं, पानी में नहीं, पानी तो वो पानी में क्या क्रम बांधता है सब लोग, 10-10 रुपया करके मटका मुक्त है। हाँ, तो फिर 10 रुपया के मटका कितना हो जैसा गया, जलसा चलता है। किया कोई काम। एक दूर से 10% गाँव भरेगा, एक बात है, 10 लाख का लोन 9 लाख का होएगा, 1 लाख गाँव भरेगा 10%, तो कितना दिन के बाद ग्रांट पास होएगा वो? अरे ग्रांट तो 5 फेज दी हमारा 8 लाख रुपये मंजूर थी जाते, हाल वोट खाए हमने कागज हम सर से मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। तम दिया या कि भाई भाड़ो आलो 28,000 तम चलो महीने 7 महीने છે બીજા 7 મહિને તમે બોર આવે 1 કલાકનો બોર થઈ ગયો હોય પણ નથી પડતી પૈસા આલે કરે ને તમે 50,000 જે તમારી ઈચ્છા હોય આલો ને બરાબર અમે ગોમના ભેળા કઈ લેવા તૈયાર છે કે આ ભાગી તમારું બોર લાગશે તો હજારવામાં નથી રાખવાના બો આલે ને એનું બોર લાગશે બોર રૂપિયા તો લાખ રૂપિયા વાળું પેલું પૂનો પાય આવા આવતા તો અમે શું ગોમ માટે અને ગોમને જીઓ ના પાડવા તમારી ઈચ્છા હોય તો પણ આપણે 10 જણા ગોમના ભેળા કરો ને આવી ગ્રામ સભા ભરી એમાં તમે આવતા તો તમારું નામ રહેશે કે ફલાણે મળશે લોકપાલ ઢાલિયા આધાર અને તો સ્વતંત્ર રેકર્ડમાં બોર્ડ લાગે ને હું પંચાયતનું બોર્ડ લાગવાનું છે 4 રૂપિયા વાળાનું બોર્ડ લાગશે ને 1 લાખ વાળાનું બોર્ડ લાગશે तो काटाधीन करो 10 ये देखिए जवाहर रोजगार योजना ग्राम पंचायत एवा पर खेत गाड़वाना क्या योजना है यहाँ पर कोई कहे કે મને કોન્ટ્રાક્ટ આલે 9 લાખ રૂપિયા ભરું તો વાત ખોટી છે પાછી તમને મને આવડે હું 2 લાખ ભરું 20 લાખ લાવે હોય પણ કોન્ટ્રાક્ટ કોઈ નથી આલતી સરકાર જાતે પોતે બનાવે છે તમે તો મને 2 લાખ ભરે મને કોન્ટ્રાક્ટ લાવો તો વાત ખોટી છે કોન્ટ્રાક્ટ જાતે બોર ભરતો હું એકલો બધે લોકો પાસે ભીખ માંગુ 200 રૂપિયા પણ કોન્ટ્રાક્ટ કોઈ નથી આપતો સરકાર પોતે જ બનાવે आप अंदर चले जाओ। बेरोजगार हैं या कितने लोग हैं जो अभी उनको ये वाला प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है तो वो आपको साथ में लेते एनआरजीए की योजना है इनमें हम आपको भागीदारी बनाते हैं।